सभी को राम राम। जय श्री महाकाल। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज की गेस्ट है हमारी कानन जॉली जी। वेलकम कानन जी। शी इज फ्रॉम मुंबई। एंड स्टार्ट करने से पहले ओम स्त्री शक्ति ही समर्थनम कुटुंब से विकासाय, क्योंकि ये हम हमारा जो इंटरव्यू है वो है वुमेन एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के ऊपर। इसीलिए हम लोगों ने ये ब्यूटीफुल से मंत्र से स्टार्ट किया है। और मैं हूँ रेणु मंगतानी, बैंकर बाय प्रोफेशन, जो कि इंटरनेशनली रिनाउंड ऑथर हैं अब, एंड अ सेलिब्रिटी ऑथर ऑफ मेनी बुक्स। तो कनन जी, कुछ बताइए हमें आपके बारे में। वैसे तो हमने आपका आर्टिकल रीड किया। यू आर वर्किंग इन एन एमएनसी एज एन असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड various other titles. So just we would love to have your introduction. Over to you, ma'am. Thank you so much. Thanks a lot for inviting me for this interview. And I'll start with a big gratitude to universe, to divine power, to you, to Abhishek sir. Thank you. So I'm working as a professional with US Bank as assistant vice president. However, that is my professional life. Into my personal life, passion life, the work I love to do is helping people, you know. So anybody who comes to me, I love to help them, take them to a different level. So for that, I have gained knowledge from various modalities, from various mentors. So I am a certified life coach. I am a certified numerologist. I am a certified tarot and angel card reader. I am a NLP practitioner. I am also Ho'oponopono healer. I have also done classes with Access Consciousness. I am a practitioner of Access Consciousness into, body processes, running bars, running facelift. So I practice all these modalities with my clients so that, they can see the difference and they can move ahead in life rather being stuck in a particular situation of a life. So I love doing that. And I am also a single mother to 12-year-old boy. I help him, he helps me, and we are a great contribution to each other. And yes, we are working together as a team of mom and son. Thank you. थैंक यू। वाओ, इसके लिए तो राउंड ऑफ अप्लॉज ही हो सकता है। Thank you. Thank you. It's really amazing meeting you. And what would you like to say, like, on women empowerment and economic development? Um, First of all, again, I would like to thank you for bringing this platform where I could put my thoughts and words and be vulnerable when it comes to women empowerment. Because as I wrote in my article also in this beautiful book, that being in a victimhood is so easy. Our brain doesn't want us to go beyond what we love doing. बिकॉज हमारा ब्रेन हमें हमेशा वो विक्टिमहुड में इसलिए रखना चाहता है क्योंकि जैसे हम कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, हमारा ब्रेन हमें वो सिग्नल्स देने लग जाता है, क्या अगर हमने ये किया तो ऐसा होगा, वैसा हो सकता है, हम सक्सीड होंगे या नहीं होंगे, या कोई हमारी हेल्प करे ना करे, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। सो जब हम उसको रेजिस्टेंस को बीट करके जब हम आगे बढ़ते हैं, तो वो मुझे ऐसा लगता है एक रियल एम्पावरमेंट है। सो व्हेन इट कम्स टू विमेन एम्पावरमेंट, आई हैव सीन सो मेनी विमेन going through tough time in their life, managing their home, managing office. Because I'm a working professional, मुझे पता है, आई सी डे टू डे फीमेल स्ट्रगलिंग विथ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड ऊपर से बच्चों का होमवर्क, उनकी पढ़ाई, ऐसी कोई चीज नहीं है जहां वो खुद के लिए कुछ कर सके। सो वहां पर आके उनको वो एम्पावर होना बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, बच्चों के साथ सब बहुत अच्छा होगा,
बट क्या आपके साथ आपका रिलेशन अच्छा है? सेल्फ लव। यस। सो वहां पर वो एम्पावरमेंट होना बहुत जरूरी है, जहां आप अपने आप को सुने, अपने साथ टाइम स्पेंड करें, सो दैट यू जस्ट वॉट एवर यू लव डूइंग, यू कीप डूइंग, एंड वंस यू आर हैप्पी, यू कैन कीप एवरीथिंग हैप्पी अराउंड यू। मतलब फिर तो आपकी हर चीज जो यहाँ थी वो यहाँ पहुंच जाएगी। वो ही तो एम्पावरमेंट है। And plus, I also feel personally that each woman on this planet should be independent, should do something to earn money. So that, God forbid, any day, any situation comes, she should stand on her feet and she should not look up to her family or friends or society for any kind of help. Exactly, She, and we truly hats off to you. Like reading to your article, I really got the goosebumps. Like, how did you manage? It was really shocking, and still females are going through all these things which you have personally faced it, and then you stood up. You didn't give up. It was like I guys, I'm still getting the goosebumps. Like I I, couldn't describe it, but you still managed it. So how was it? Like it was it difficult for you? How did you manage all these things? And what message you would like to give to the females who are still facing all these things in the 21st century? yeah, thank you so much for your kind words. Uh, So my intention was I want to raise a man who respects women, who respects friends, society, his mother, not a man who easily beats a woman and thinks he's the hero. So my thought at that time when I left that place was to raise a boy into a decent man. And I did not wanted him to learn that, okay, this is what reality is of a woman. She should be beaten up by the husband or beaten up by somebody from the family. She is not, मतलब वो कोई खिलौना नहीं है, उसको आप जब चाहे तोड़ दो, मार दो, इमोशनली ड्रेन कर दो। वो कोई खिलौना नहीं है। तो वो मुझे अपने बेटे को कहीं नहीं सिखाना था। तो इसके लिए मुझे वो उस समय स्टेप लेना बहुत जरूरी लगा। थैंकफुली आई वॉज वर्किंग, आई वॉज फाइनेंशियली, मैं थोड़ी अनस्टेबल थी उस टाइम पे, बट बाय गॉड्स ग्रेस मेरी सारी चीजें बहुत इजीली हो गई, बिकॉज समवेयर आई फील दैट गॉड इज देयर विथ मी, भले कोई और हो ना हो। तो बस मैनेज हो गया, with the help of, with the blessings of universe and of course my family. थैंक यू। एंड हमने देखा कि आपने इंटरव्यू भी जब स्टार्ट हुआ, सो यू बिलीव अ लॉट इन यूनिवर्स एंड लाइक वी कन्वर्सेटेड नाउ अबाउट फॉर 5 to 10 minutes। हर एक चीज में ना आपका ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स है, सो ये बहुत ही अच्छी बात है। और हमारे लाइफ में जो भी कुछ भी होता है, सराउंडिंग्स में, पर्सनली हमारे लाइफ में जो भी कुछ भी होता है, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग से और ग्रेस से ही होता है। हम अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, ये सब कर्मों का खेल है, सब कुछ यूनिवर्स की मर्जी से होता है। तो हम जानना चाहेंगे कि स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आपका क्या कहना? स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए कनेक्टिंग विद इन है, क्योंकि यूनिवर्स हमारे अंदर है एंड यूनिवर्स बाहर है। वो एक वननेस होती है ना, दैट आई एम द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स इज विद इन मी, आउटसाइड मी। तो वो जो कनेक्शन हो जाता है ना अपने साथ अंदर से, देन यू स्टार्ट लिसनिंग टू योरसेल्फ, देन यू स्टार्ट बीइंग मोर इंट्यूटिव। आपको बहुत चीजों की अवेयरनेस होने लग जाती है, आपको पता होने लग जाती है कि ये चीज ऐसे हो सकती है या ये चीज ऐसे होने वाली है। आप पहले ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हो या अपने आप को उस डायरेक्शन में डालते हो जहाँ आपकी चीजें बेटर हो सकती हैं। तो वो जो कामनेस आती है मेडिटेशन से, स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा, मतलब स्पिरिचुअलिटी अक्सर लोग रिलीजन से कंफ्यूज करते हैं।
रिलीजन इज सेपरेट। रिलीजन हम लोगों के लिए इसलिए बनाया गया है ताकि हम एक फॉलोइंग द गॉड, फॉलोइंग रिचुअल्स, ताकि हम कनेक्टेड रहे भगवान जी से। शक्ति तो वो एक ही है, भले ही एक ही नाम है। अलग अलग है कि जैसे कि आपने एग्जैक्टली। बताया रिलीजन, रिलीजन इज डिफरेंट बट वो शक्ति एक ही है। एब्सोल्युटली, वो पावर एक ही है, डिवाइन पावर एक ही है। पर स्पिरिचुअलिटी में आप अपने ऊपर काम करते हो, आप कनेक्टेड फिर भी भगवान से रहते ही हो, आप अपने गॉड से कनेक्टेड रहते हो, बट आप अपने ऊपर काम करने में बिलीव करते हो। फिर आपको सबको ठीक नहीं करना, आपको सिर्फ अपने आप को ठीक करना है। मुझे ऐसा लगता है स्पिरिचुअलिटी हुआ है जहाँ मुझे पता है मेरे शॉर्टकम्स क्या है, तो मुझे उस पे काम करना है, सो और दैट हम आई कैन बी अ यूनिवर्स बेटर। में बिलीव करके अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें देख के कहते हैं ना कि अभी जैसे कि आपने इतना कुछ अचीव किया, यू डिडंट गिव अप, यू स्टूड अप, यू फाउट, यू आर अ ब्रेव पर्सनालिटी। सो आज कानन जो है वो एक इंस्पिरेशन है कि वो हारी नहीं, उन्होंने हिम्मत से सबको करके दिखाया, तो वो एक इंस्पिरेशन बन गई है आज आप। एक्चुअली आप जो कह रहे हो ना, वो जब मुझे आके कोई बोलता है ना यू आर एन इंस्पिरेशन, मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने मुझे चूज किया है। मतलब गोइंग थ्रू ऑल इन माय लाइफ, इन माय मैरिड लाइफ स्पेशली, गेटिंग आउट ऑफ डाइवोर्स, ये हो सकता है कोई ऐसा सोचे कि इसकी खुद की शादी तो टिकी नहीं, ये क्या किसी को बताएगी या हेल्प करेगी। बट पर वो पता नहीं होता ना सामने वाले को, दे जस्ट वो मतलब बातें बनाते हैं कि क्या एग्जैक्टली रहा होगा, ये तो जो जो दो सोल्स के बीच में जो हुआ है, ये अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी हुआ, ये तो उनको ही पता होगा ना। लोग तो बातें बनाते हैं, बोलने वाले तो बोलेंगे, उनका तो काम है बोलना। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे इस पाथ पे ये मैं पहले से चूज करके आई थी। जब मैं इस बॉडी में आई हूँ एज अ सोल, मैंने पहले से चूज किया था कि आई वांट टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स सो दैट आई कैन लर्न एंड आई कैन हेल्प। ये मेरा एक पर्पस ऑफ लाइफ है, टू हेल्प females, those who are going through separation, और those who are struggling in married life। उनको पता ही नहीं है, आजकल कितनी फीमेल्स कंफ्यूज्ड हैं कि उनको उसी शादी में रहना है नहीं रहना है। तो अरे वहां जो कुछ लोग तो मतलब जस्ट निभाना ही है, अब तो कर ही लिया है, लोग बातें बनाएंगे बस जस्ट जी, फॉर द सेक ऑफ दैट, वो लोग निभा के चल रहे हैं। उनके सोसाइटी बीच में प्रेशर, बॉन्डिंग कुछ नहीं है बट स्टिल दे आर जस्ट लाइक हाँ अब पति पत्नी तो है ही हम सोसाइटी के लिए, तो उस हिसाब से बच्चों चल के रहा लिए, है। बच्चों बच्चों के के लिए। लिए। हाँ हम्म। एग्जैक्टली। क्योंकि तो सोसाइटी, फैमिली, बच्चे, इन सबको ध्यान में रख के हम अपनी लाइफ ना जिए, अपने आप को ध्यान में रख के अगर अपनी लाइफ जिए, तो हमें हमारा पर्पस समझ में आता है। हम इस दुनिया में कुछ करने आए हैं, हमारा वाई बहुत जरूरी है। वाई डिड आई केम टू दिस प्लैनेट, वाई डिड आई एंटर दिस बॉडी, व्हाट इज माय वाई, वो इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। एंड कानन जी, बिकॉज जैसे कि आपने बताया कि आपने वेरियस टाइटल्स अचीव किए हैं, आप इतना कुछ कर रही हैं डिस्पाइट ऑफ बीइंग वर्किंग इन एन एमएनसी, तो मैं समझ सकती हूँ एमएनसी में आप काम कर रही हैं तो कितना प्रेशर होगा। सो 24 आवर्स आर लिटरली नॉट इनफ फॉर यू, सो लाइक कैसे मैनेज करती हैं आप ये सारी चीजें? एंड यू आर ऑल्सो नोन एज कानन दी कोच, सो हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स इन योर 24 आवर्स? अगेन क्रेडिट गोज टू यूनिवर्स। मेरी बहुत सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं। हो सकता है कोई सुने उसको लगे ये क्या बोल रहे हैं, बट आप समझ सकते हो, बिलीविंग इन यूनिवर्स, बिलीविंग इन डिवाइन पावर, ऐसा बहुत बारी हुआ है कि मेरी चीजें इतनी स्मूथली हुई हैं कि मुझे खुद ऐसा लगता है कि यार सच में मेरे ऊपर कोई हाथ है। एंड प्लस ऑफ कोर्स माय बिगेस्ट ग्रैटिट्यूड टू माय सन, बिकॉज वो छोटी एज में इतना मेच्योर हो गया और वो मुझे हर तरह से हेल्प करता है। मतलब जहां मुझे उसको सपोर्ट करना चाहिए वो मुझे सपोर्ट करता है। ही डज हिज स्टडीज ऑन हिमसेल्फ। मतलब वो कहता है मम्मा आप अपना काम करो, मैं पढ़ाई कर लूंगा, एंड टचवुड ही इज डूइंग सो वेल। मुझे एक वो वहां पर थोड़ा सा, मतलब गिल्ट रिलीफ। तो
हम्म। गिल्ट नहीं, मैं गिल्ट बिल्कुल नहीं बोलूंगी, क्योंकि ही इज अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ एंड ही इज डूइंग हिमसेल्फ। प्लस ऑल्सो ग्रैटिट्यूड टू माई हाउस हेल्प, जो मेरा बहुत सारा काम देख लेती है, तो वो एक है। एंड ऑल्सो ग्रैटिट्यूड टू माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, स्पेशली फ्रेंड्स here in Mumbai. They are helping me in their own way. And yes, उनके सपोर्ट के बिना, यूनिवर्स के सपोर्ट के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है. So again, I will say thank you to all the support I'm receiving. तो वैसे अपनी So, कन्वर्सेशन तो हो ही रही है, बट जैसे कि हम मुंबई से हैं, थोड़ा सा बिकॉज आई पर्सनली लव मुंबई, लाइक आई एम ऑल्सो फ्रॉम मुंबई, लाइक wow, आई एम शिफ्टेड टू दिल्ली। सो मुंबई का वड़ा पाव, क्या कहना है उसके बारे में? मुझे बहुत पसंद है. आई लव वड़ा पाव. थोड़ा मतलब अनहेल्दी जरूर है, लेकिन कभी कभी अनहेल्दी भी बड़ा टेस्टी लगता है. सो मुझे बहुत पसंद है. दैट्स सो स्वीट। और यस. या, तो आपको क्या फीलिंग आ रही है गेटिंग सच वंडरफुल रिकॉग्निशन एज अ सर्टिफाइड पब्लिश्ड co-author with this book? What's your feeling on it? इट्स एब्सोल्युटली सरियल, बिकॉज इतने सारे टाइटल्स के साथ अब एक ऑथर टाइटल भी, मुझे ऐसा लगता है अचीवमेंट है. ये बहुत ही ऑसम फीलिंग है, बिकॉज ड्रीम तो हमेशा से था अपने थॉट्स एक बुक में लिखना. पर ये अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी थी, ये टाइटल इतना अच्छा था, और मुझे ऐसा लगा इसमें अगर मैं आर्टिकल लिखूंगी, और मेरे आर्टिकल से अगर एक या दो लोग भी इंस्पायर होके अपनी लाइफ में वो शिफ्ट ले आते हैं, कुछ चेंजेस कर लेते हैं, और उनकी लाइफ बेटर हो जाती है, तो इससे बड़ी चीज कुछ भी नहीं है. तो इसलिए मतलब मुझे ये कंट्रीब्यूशन इतना अच्छा लगा, और मुझे मतलब एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है कि मैं आई एम पार्ट ऑफ दिस बुक. सब को ऑथर्स ने ब्यूटीफुली अपने आर्टिकल्स लिखे हैं, मैंने पूरी सबकी पर्सनली आर्टिकल्स पढ़े हैं, एंड एवरीबडी हैड डन अमेजिंग एंड वंडरफुल जॉब. एंड आई एम सो ब्लेस्ड एंड हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस बुक. और कुछ टिप्स शेयर करिए आप हमारे ऑडियंस के साथ कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन लाइफ, जैसे कि आप लाइफ कोच हैं, सो दैट उनके लिए कुछ हेल्पफुल हो, हाउ दे शुड स्टार्ट देयर डे, हाउ इट कुड बी देयर ब्यूटीफुल लाइफ। सो ग्रैटिट्यूड. जब तक हम थैंकफुल नहीं होंगे तब तक हम खुश नहीं होंगे, वरना हम रोते ही रहेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ना सोच के मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है. उस चीज पे अगर हम ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, हमारी वाइब्रेशंस चेंज हो जाती है. और दिन अपना हमेशा मेडिटेशन से शुरू करें, ग्रैटिट्यूड से शुरू करें. कुछ ऐसे रिचुअल्स जरूर बनाए लाइफ में, जो शुरुआती मतलब एक तो फोन को ना टच करें. सबसे पहले सुबह उठते ही, सिर्फ उठते ही फोन और हाँ, सोते ही फोन। वो वो जो सुबह का 1 घंटा उठने के बाद होता है ना, फोन ना टच करें, क्योंकि फोन से हमें ऐसी वाइब्रेशंस आ जाती है, मैंने पर्सनली फील किया है, जो मेरा इंस्टेंट मूड चेंज कर देती है. मैं उठते बहुत फ्रेश एनर्जेटिक होती हूँ, और बाई चांस अगर मैंने फोन चेक कर लिया, मेरी सारी वाइब्रेशंस डाउन चल जाती है. सो आई डू माई रिचुअल्स ऑफ मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड. आई राइट लेटर टू माई सेल्फ. मेरा ये एक रिचुअल है, मैं अपने आप को एक लेटर लिखती हूँ, एंड वेयर आई से आई हैव डन सो ब्यूटिफुल इन लाइफ, विच मोटिवेट्स मी. सो आई से थैंक यू टू माई सेल्फ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जब तक हम अपने आप को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट नहीं करेंगे ना, जैसे आपने सेल्फ लव का, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेल्फ लव. क्योंकि हमें अपने आप को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है रोज आगे बढ़ने के लिए. प्लस आप कुछ एक्सरसाइजेस जरूर करें, so that having that physical activity in your life also increase your vibration. So that is also very much important. Read books, watch motivational videos, follow motivational speakers, एंड जितना हो सके अपने फोन से दूर रहें, अपने फोन को डी क्लटर करते रहें.
अपने इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक से भी डीक्लटर करें ऐसे लोगों से, लोगों को जिनसे आपको अच्छी वाइब्स नहीं आती है। बिकॉज अपनी जो हमारी हमारी जो लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना, वो हमारी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करते हैं। क्योंकि हम चाहे नहीं चाहे कई लोगों से हम दूर नहीं हो सकते, बट हम उसको कैसे रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करें, वो एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो थैंक यू सो ये मच, आपने इतने ब्यूटीफुल टिप्स दिए। लाइक ये तो बहुत ही हेल्पफुल होंगे हमारी ऑडियंस के लिए जो भी हमें सुन रहा है। और यहाँ अब कानन जी की जर्नी जो है रुकेगी नहीं, सिर्फ इसी किताब तक नहीं रहेगी, वो आगे हमारी जितनी भी किताबें आएंगी, जितनी हमारी जर्नी है, क्योंकि आगे अभी और जर्नी है, हमें बहुत कुछ अचीव करना है। और सिंस दिस इज एन एसोसिएशन विद अंकाक्षर मिरेकल्स व्हिच इज अ इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंसेस, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज एंड रिसर्च, जो कि न्यू कमर्स को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो हमारी अगली किताब आ रही है जहां होंगे 108 को ऑथर्स। वुमेन एम्पावरमेंट में हमारे साथ थे 51 को ऑथर्स, जिनमें से हमारी एक ब्यूटीफुल सी को ऑथर अभी हमारे साथ हैं, कानन जी। तो 108 को ऑथर्स, और हमारे साथ अगली बुक में भी हैं कानन जी, विच इज अ मैरिज, माई मैरिज, ब्लिस वर्सेस कर्स। तो क्या कहना है आपका इस टॉपिक के बारे में? जब मैंने टाइटल पढ़ा तो मुझे मतलब लगा मैं क्या लिख सकती हूँ। तो फिर मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि वट एवर आई हैड गॉन थ्रू इन माई मैरिड लाइफ, somewhere it's a blessing for me because where I am today because of that marriage. अगर वो चीज खराब नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। खराब भी नहीं मुझे कहना चाहिए, मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। मुझे उस शादी में मतलब ठीक है, नहीं काम किया, नहीं हुआ, वर्कआउट हुई चीजें, बहुत कुछ हुआ, बट आज मैं यहाँ हूँ सिर्फ इसलिए कि वहां कुछ नहीं अच्छा हुआ। एंड वही है प्लस कि माई आपने फेलियर से सीखा। जी, एंड प्लस माई सन इज माई ब्लेसिंग फ्रॉम दैट मैरिज। So I would not say a curse. I would say it's a bliss, but in a different way. एग्जैक्टली, यू टुक इट वेरी इन अ वेरी पॉजिटिव वे, एंड इट्स रियली अमेजिंग। बिकॉज अगर आप ये सोच के, मतलब कि इट्स अ कर्स, नेगेटिविटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सो वो तो वर्कआउट करता ही नहीं। यू डिड Hmm. सेल्फ लव, यू आर अ ब्रेव पर्सनालिटी, एंड यू डिड इट। Thank तो you. वुमेन एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स की बुक जो है ये वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, और अमेजोन पे अभी उसका 16% डिस्काउंट चल रहा है। तो मैम, आप रीडर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी इस किताब को लेके? ये बुक बहुत ही वंडरफुल है। As I said, 51 co-authors came together. They have put their thoughts, feelings, emotions into this book on this particular topic. Go read this book and encourage your family, friends, gift it to your friends, girlfriends, sister, mother, ताकि वो भी ये बुक पढ़े। क्योंकि एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, किसी एक स्टोरी से अगर हम कुछ इंस्पायर होके अपनी लाइफ में वो छोटा चेंज भी ले आएंगे ना, तो बहुत हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। वो छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं ना, वही हमें एक ग्रेटनेस की तरफ लेके जाते हैं। तो इसके लिए do read this book, and now it's available on Amazon with 16% discount, which is a good news, superb news. So please go ahead and read this book. थैंक यू सो मच मैम, आपने रीडर्स को एडवाइस दिया। और माय मैरिज की जो एंथोलॉजी अभी 108 को ऑथर्स हैं, उसकी एंट्रीज अभी भी ओपन है, तो आप जल्दी से रजिस्टर करिए। और ये थी आज की मुलाकात कानन जी के साथ। कानन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी पॉजिटिव वाइब्स सुन के, मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा। अमेजिंग, यू आर अ ग्रेट पर्सनालिटी। Thank और you. जल्दी मिलेंगे हम अपनी अगली को ऑथर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, स्टे ट्यून। Thank you so much. थैंक यू Thanks a सो lot. मच।